السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو کیا حال ہے؟ میں ہوں احسان اللہ اور ہم سیکھ رہے تھے کس کے بارے میں؟ ریسپیریشن کے بارے میں۔ ریسپیریشن میں ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ ہم نے گلائکولائسس کی تھی، اس کے بعد ہم نے پائرویٹ کی آکسیڈیشن کی ہے۔ پائرویٹ کی آکسیڈیشن کے بعد جو ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ آیا تھا مین، وہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ایسیٹائل کو انزائم اے۔ ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائیکل، ایک ایسا سائیکل جس نے بائیو کیمسٹری کی دنیا میں ریولوشن لایا ہے، اس سائیکل سے بس بائیو کیمسٹری ٹوٹل چینج ہی ہو گئی، اس سائیکل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس سائیکل کو کھولنے والی چابی جو ہم نے پائرویٹ کی آکسیڈیشن کر کے حاصل کر لی تھی، کون سی والی؟ ایسیٹائل کو انزائم اے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو سائیکل ہے، ان کو ہمارے کریگ بائی نے، کس نے؟ کریگ بائی نے 1937 میں ڈسکور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کریگ کی وجہ سے اس سائیکل کو کریگز سائیکل بولتے ہیں۔ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سائیکل ہے، بہت ہی غور سے سننا ہے، لیکچر تھوڑا لمبا جانے والا ہے، اس لیے دل تھام کے بیٹھیے گا، اپنی پین پینسل نوٹس اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھیے گا۔ ہم بہت ہی ڈیٹیل میں جائیں گے، اور جس کو صرف اوور ویو چاہیے سائیکل کی چاہیے تو پھر ویڈیو کے آخر میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم شروعات اس کو بہت ہی ڈیٹیل سے اسٹرکچر بائی اسٹرکچر کریں گے کہ کوئی بھی اسٹرکچر میں جو چینجنگ آتی ہے وہ کیسے آتی ہے، کس طرح سے آتی ہے، کس انزائم کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کریگ سائیکل کا ایک اور نام ہے، مطلب اس کو پہلے ٹرائی کارباکسلک ایسڈ سائیکل بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا؟ ٹرائی کارباکسلک ایسڈ سائیکل۔ ٹرائی کارباکسلک ایسڈ سائیکل اس کو اس وجہ سے بولتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا جو پہلا کمپاؤنڈ ہے اس میں 3 کارباکسلک گروپ ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس سٹریٹ ہے، تو پھر اس کا نام پڑ گیا سٹرک ایسڈ سائیکل۔ تو یہ تینوں نام جو ہیں ایک ہی چیز کے ہیں، چاہے ٹرائی کارباکسلک ایسڈ سائیکل ہو، چاہے ہمارے پاس کریگز سائیکل ہو، یا چاہے ہمارے پاس TCSC مطلب سٹرک ایسڈ سائیکل ہو۔ تو ہم کس کے کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ کریگ سائیکل، ٹرائی کارباکسلک ایسڈ سائیکل یا سٹرک ایسڈ سائیکل۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا پہلا جو کمپاؤنڈ ہے وہ سٹریٹ ہے، اس لیے آج کل جو یہ نام ہے نا TCA سائیکل جسے بولتے ہیں، آج کل یہ کوئی اس کا خواہ متروک ہو چکا ہے، اس کو یہ نام دینا لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں کریگ سائیکل کے۔ یاد رکھنا یہ سائیکل ہے، سائیکل کا مطلب اس میں ایک سٹارٹنگ کوئی ایلیمنٹ، کوئی کمپاؤنڈ ہوگا جو کہ آخر میں ری جنریٹ ہوگا، اسی وجہ سے یہ سائیکل ہے۔ اور اس کے علاوہ گلائکولائسس اور کریگ سائیکل میں مین ڈفرینسز اگر بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس گلائکولائسس تھی وہ کہاں پر ہو رہی تھی؟ کہاں پر ہو رہی تھی؟ سائٹوپلازم میں، سائٹوپلازم سائٹوسول میں ہو رہی تھی، جبکہ کریگ سائیکل جو ہے وہ ود ان مائٹوکانڈریا، ان سائڈ دی مائٹوکانڈریا میں ہوگا، اس کے میٹرکس میں یہ والا جو سائیکل ہے یہ اکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کے سٹیپ سے۔ تو سب سے پہلے سٹیپ میں دیکھو، ہم نے شروعات جو ہمارے پاس چابی آئی تھی کس کی؟ ایسیٹائل کو انزائم اے کی صورت میں، وہیں سے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ایسیٹائل کو انزائم اے۔ ایسیٹائل کو انزائم اے کا فارمولا کیا بنا تھا ہمارے پاس؟ سی، ہمارے پاس یہاں پہ کو انزائم اے اٹیچ ہوا تھا، اور اس کے بعد ڈبل بانڈ OCH3۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ ہمارے پاس ایسیٹائل کو انزائم اے تھا، میں اس کو تھوڑا سا اس فارم میں لکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سی ڈبل بانڈ OS کو انزائم اے، یہ تھائیوسٹر کمپاؤنڈ ہے، تھائیوسٹر بانڈ ہے، اور یہ ہمارے پاس CH3۔ یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ایسیٹائل کو انزائم اے، جو کہ پائرویٹ کی آکسیڈیشن کے بعد ہمارے پاس مل گیا تھا، ایسیٹائل کو انزائم اے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسیٹائل کو انزائم اے ایک 4 کاربن کمپاؤنڈ جس کو کہتے ہیں آکزیلو ایسیٹیٹ، اس کے ساتھ ملتا ہے۔ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ آکزیلو ایسیٹیٹ۔ آکزیلو ایسیٹیٹ کا اگر میں فارمولا بتاؤں تو آکزیلو ایسیٹیٹ کا فارمولا ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ OH، ٹھیک ہے، اس کے بعد CH2 اور C ڈبل بانڈ O نیگیٹو، یہ H نہیں ہے گا نیگیٹو، ٹھیک ہے، یہ بھی نیگیٹو اور یہ بھی نیگیٹو۔
इस कंपाउंड को बोलते हैं, देखो 4 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंपाउंड है और इसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट। अब इसके साथ होता है सबसे पहले काम होता है इसकी होती है कंडेंसेशन। इसकी क्या होती है? कंडेंसेशन। जो एंजाइम यूज होता है यहाँ बस इस रिएक्शन में उसको कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज देखो पहले क्या करता है, इसकी कंडेंसेशन करता है। कौन सी वाली कंडेंसेशन करते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर होती है सबसे पहले कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा कि ये हमारे पास कंडेंसेशन 2 कार्बन्स की होगी। जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप का कार्बन है ये वाला अल्काइल कार्बन, ठीक है, इसकी, और ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट का, इसकी होगी कंडेंसेशन। इनके आपस में बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं क्या करता हूँ, खोल के लिखता हूँ। यहाँ पे H और इस तरफ 2H, ये CH3 है। तो ये वाला जो एक H है, ये वाला एक H है, ये जाके इस ऑक्सीजन पे एक्ट करता है और यहाँ पर ये बन जाते हैं OH। उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाता है और ये कार्बन हो जाता है फ्री। ठीक है, जब ये कार्बन फ्री हो जाता है तो ये कार्बन हमारे पास क्या करेगा, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या हुआ हमारे पास कंडेंसेशन में? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A का जो CH3 था उसका एक H ऑक्सैलो एसीटेट के इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाता है और ये कार्बन फ्री हो जाता है। ये कार्बन जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ, ये ऊपर से शुरू करते हैं, C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A, उसके बाद यहाँ पे CH2 था, ठीक है, और ये इस कार्बन का बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना, तो ये हमारे पास यहाँ पे C। अब इस कार्बन के राइट पे क्या था? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे ये H इस ऑक्सीजन के साथ आके OH में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, बाकी नीचे वाला स्ट्रक्चर साथ लिखते हैं, तो CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, किसकी वजह से? कंडेंसेशन की वजह से। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? सिट्रेट सिंथेज। और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये एक इंटरमीडिएट है 6 कार्बन वाला, और इसका नाम होगा सिट्राइल। क्या नाम होगा इसका? सिट्राइल। और इस कोएंजाइम A की वजह से सिट्राइल कोएंजाइम A। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सिट्राइल कोएंजाइम A। अब ये जो सिट्राइल कोएंजाइम A है ये इंटरमीडिएट है, ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब इस सिट्राइल कोएंजाइम A के साथ क्या होगा कि इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस। ये वापस इसकी होगी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम? H2O ऐड करते हैं। ठीक है, क्या चीज ऐड करते हैं? H2O। अब ये H2O जो है इसी एंजाइम की मौजूदगी में, कौन सा? सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या करेगा? ये ब्रेक हो जाएगा, ये वैसे ही H पॉजिटिव की सूरत में आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस ये जो OH है इसका H इस S के साथ मिल जाएगा और ये O जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और ये जो H है ये बॉन्ड काट के इस S के साथ आ जाएगा, ऐसे HS कोएंजाइम A। अब ये हमारे पास देखो कोएंजाइम A रीजनरेट हो गया, ये निकल गया, ये यहाँ से कोएंजाइम A निकल जाएगा, और जो पीछे देखो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये वाला जो O था ये यहाँ पर आके O नेगेटिव की फॉर्म में रह गया था। ठीक है, उसके बाद CH2, उसके बाद C, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस तरफ OH, और फिर आगे CH2, और फिर आगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें
तो इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और अगर और जरा गौर से देखें तो ये भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ठीक है, ये भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है और ये भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। तो मतलब ये कितने कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक, 3 इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं और इसको कहेंगे, ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है सिट्रेट। इसका नाम क्या है? सिट्रेट। तो ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ? उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिला। ऑक्सैलो एसीटेट के मिलने के बाद सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है वो इस पे एक्ट करता है। सबसे पहले इसकी कंडेंसेशन करता है इन दोनों की। अल्डोल कंडेंसेशन होगी तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिल जाएगा और ये H जो है इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा सिट्राइल कोएंजाइम ए। ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की होगी हाइड्रोलाइसिस। इस स्ट्रक्चर की क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद H पॉजिटिव वैसे रिलीज हो जाएगा, कोएंजाइम ए इस कंपाउंड से निकल जाएगा और जो पीछे हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? सिट्रेट का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पहला रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया और हमारे पास क्या बना? सिट्रेट। सिट्रेट बन गया। सिट्रेट कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। और रिलीज क्या क्या हुए? रिलीज हमारे पास को एंजाइम ए जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा सिट्रेट के आगे? ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास बन गया सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। और खुद कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। अब होगा इस जो सिट्रेट है इसके साथ आगे क्या होने वाला है? अब मैं यहाँ तुम लोगों से पूछता हूँ, ये जो हमारे पास OH है ना, ये वाला, ये नजर आ रहा है ना, ये OH, ठीक है, अगर मैं इस OH इसकी वजह से ये तो अल्कोहलिक है, ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हुआ है, लेकिन ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। ठीक है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 3 और कार्बन के साथ अटैच हुआ है। तो ये कौन सी डिग्री वाला अल्कोहल हुआ? 3 डिग्री, टर्शियरी अल्कोहल हुआ। ठीक है, तो इस टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होती है, इसकी ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इस 3 डिग्री अल्कोहल को, ये जो सिट्रेट है, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे इसी के आइसोमर आइसोसिट्रेट में। दोनों में क्या फर्क है कि वहां पे ये OH जो है सिट्रेट में इस कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है, आइसोसिट्रेट में ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा। अब देखना वो कैसे अटैच होता है। तो मैं इस आइसोसिट्रेट को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, यहाँ इसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा से बना देता हूँ। क्या है हमारे पास? आइसोसिट्रेट क्या है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या था? सिट्रेट। अब इस सिट्रेट के साथ आगे क्या होगा? सिट्रेट के साथ आगे बढ़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, एक एंजाइम जो कि यूज होगा यहाँ पर, वो है आइसोमरेज वाला एंजाइम। कौन से वाला? आइसोमरेज वाला एंजाइम है, उसका नाम है एकोनिटेज। क्या नाम है उसका? एकोनिटेज। एकोनिटेज 2 स्टेप्स रिएक्शन करवाता है। पहले इसको इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस इंटरमीडिएट को दोबारा इसके अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? एकोनिटेज सबसे पहले करता है हमारे पास डिहाइड्रेशन। क्या करता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास H2O को रिलीज करवाएगा। H2O को क्या करेगा? रिलीज। अब कैसे करेगा? यहाँ पर मैं एकोनिटेज में से डिहाइड्रेशन है वो, इसको मैं खोल के लिखता हूँ, CH2 है, तो एक H ये हुआ और एक H ये हुआ। जो एकोनिटेज एंजाइम है वो इस वाले H और OH को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा? रिलीज करेगा लेकिन ये एंजाइम बाउंड है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, एंजाइम के साथ ही बाउंड हुआ होगा। तो एंजाइम बाउंड है तो रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको गौर से बनाते हैं। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर CH2, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O नेगेटिव,
वहां से जो H था OH था वो भी रिलीज हो गया, और नीचे C और ये H, ठीक है, यहाँ से H भी रिलीज हो गया। तो अपने बांड को पूरे करने के लिए इस कार्बन के साथ डबल बांड बना देगा और नीचे C डबल बांड O नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया डिहाइड्रेशन की वजह से। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस एकोनिटेट। इसे क्या बोलते हैं? सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट इसको इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो OH और H दोनों सेम साइड से निकले हैं, तो सिस बनेगा, सिस एकोनिटेट। अब ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है इसके साथ आगे क्या होगा? इसकी होगी रिहाइड्रेशन। वही हमारे पास सेम एंजाइम है एकोनिटेज, वो अब दोबारा से करेगा इसमें वाटर की एडिशन। वाटर की एडिशन मतलब HOH को हम दोबारा से ऐड करेंगे। जब दोबारा से ऐड करेंगे देखो तो हमारे पास दो चांसेस होती हैं। दो चांसेस कैसे हैं? या तो ये OH जो है इस वाले कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान है तो एडिशन भी इधर ही होगी, तो या तो OH इस वाले कार्बन के साथ अटैच होकर दोबारा से सिट्रेट बनाएगा, या फिर ये OH इस वाले कार्बन के साथ अटैच होकर दूसरा इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म है आइसोसिट्रेट उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों जो है ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो दोनों में ये चीजें जो कन्वर्ट हो सकती है, सेम एंजाइम इसको रिवर्स भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अटैच करवाना चाहते हैं कि इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ OH को अटैच करते हैं तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2, उसके बाद C और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला कार्बन जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ H लग जाएगा, ठीक है, और C और इसके साथ OH और H, ठीक है। ये वाला जो OH था वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ और नीचे जो कंपाउंड बना वो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। वो क्या बना हमारे पास? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब दोनों में इधर देखो फर्क क्या है? इस वाले कंपाउंड में ये जो OH है ये इस कार्बन पे अटैच है, जबकि यहाँ पर ये इस कार्बन पे अटैच था। अगर यहाँ से देखें तो ये OH जो है इसका कार्बन इस और इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कौन सा है? 2 डिग्री। वो कौन सा है? 2 डिग्री। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए आसानी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो हमें पास जो मेन कार्बन कंपाउंड है उसके टूटने का खतरा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूटने का खतरा हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बना, इसको कहते हैं आइसोसिट्रेट। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसिट्रेट। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और जो सिट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? आइसोसिट्रेट में। इस आइसोसिट्रेट को मैं इधर बनाता हूँ और इसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल था, सिट्रेट था, सिट्रेट में एकोनिडेज एंजाइम की वजह से पहले हुई डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से जो इंटरमीडिएट बना वो सिस एकोनिटेट बना। सिस एकोनिटेट के बाद उसकी हुई रिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन के बाद इसी का आइसोमर बना कौन से वाला? आइसोसिट्रेट। तो यहाँ पर मैं इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आइसोसिट्रेट में मेन क्या चीज है? हमारे पास जो OH था वो इस कार्बन पे आ गया, यहाँ पे OH अटैच हुआ, यहाँ पे H, और ये क्या था हमारे पास? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर H। तो ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना? आइसोसिट्रेट। ये स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास? आइसोसिट्रेट। अब ये आइसोसिट्रेट आगे कैसे प्रोसीड होगा? इसका नाम क्या है? आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब इस आइसोसिट्रेट को आगे हम प्रोसीड करते हैं। आइसोसिट्रेट आगे कैसे प्रोसीड होगा? ये आइसोसिट्रेट बन गया, यहाँ पर आगे हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन होगा डीकार्बोक्सिलेशन का। चार मतलब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होगी वो 4 जगहों पर होगी और उसमें जो सबसे पहला जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगी वो इस स्टेप पे होगी। आइसोसिट्रेट से हम CO2 को निकालेंगे और उसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है, क्या जो एंजाइम यूज होता है, इसके करते हैं पहले ऑक्सीडेशन या पहले इसकी करते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करते हैं हम? डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये आइसोसिट्रेट है, इसकी करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए
और साथ में हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए, इसमें हम एडिशन करेंगे NAD+ की, NAD+ की एडिशन करेंगे। एंजाइम जो यहाँ पर यूज होगा वो होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये क्या करेगा कि हमारे पास ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, कौन से वाला? ये वाला, इसको कर देगा रिलीज। इसको जब रिलीज करेगा उसके बाद क्या होगा? हम पहले वो वाला बॉन्ड जो है वो रिलीज करते हैं और ये जो NAD+ है ये क्या करेगा? इस H को और इस H को क्या कर देगा? निकाल देगा। अच्छा, चलो हम रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसके बाद इसको थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करेंगे और ये NAD+ पहले काम करेगा, ये इस H को और इस H को अपने साथ निकाल देगा। NAD+ से 2H हमेशा निकालता है, तो जब इन दोनों को निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? NADH+ H पॉजिटिव। पीछे जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H, और यहाँ से क्योंकि ये H और ये H दोनों रिलीज हो गए तो जो C है वो ऑक्सीजन के साथ बना देगा डबल बॉन्ड और यहाँ से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो CO नेगेटिव हमारे पास है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वाला, लेकिन यहाँ पर हो गया हमारे पास कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, एज इंटरमीडिएट है और इसको नाम जो हम देते हैं वो है ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब इस ऑक्सैलोसक्सिनेट की यही हमारे पास जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का, उसको इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज करवा देगा। इसको जब इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज करेंगे, यहाँ से CO2 रिलीज हो गया तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है वो कैसे? ये हमारे पास ये जो H पॉजिटिव था, कौन से वाला? ये वाला H पॉजिटिव, इसकी जगह इसकी एडिशन होगी और जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड होगा H ऐड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसके बाद CH2, उसके बाद C, इस तरफ भी H आ गया, इस तरफ भी H आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक CO2 निकल गया और ये कीटोनिक ग्रुप की वजह से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। कैसे बना? आइसोसिट्रेट में हमने डाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिसके साथ ऐड था NAD+। उस NAD+ ने इस कार्बन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर बना C डबल बॉन्ड O और ये वाला जो इंटरमीडिएट है इसको कहते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट में CO2 रिलीज हुआ और उसकी जगह हाइड्रोजन ने ले ली और जो स्ट्रक्चर फाइनल हमारे पास बना वो क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसके आगे होगी प्रोसीजन। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे इसके साथ क्या होगा? इसके एक बार फिर से होगी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से इसका एक CO2 फिर रिलीज होगा, लेकिन कैसे रिलीज होगा? इसमें हम ऐड करेंगे कोएंजाइम A। क्या ऐड करेंगे? कोएंजाइम A। कोएंजाइम A ऐड करेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे NAD+। क्या ऐड करेंगे? NAD+। अब NAD+ की वजह से यहाँ में जो एंजाइम यूज होगा ये होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जैसा कि जो कॉम्प्लेक्स हमने यूज किया था जब पायरुवेट को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में,
तो वहां पर जो हमने एंजाइम यूज किया था अल्फा पीडीसी, इसी तरीके से ये भी एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है, पूरे इसके अंदर कोई एक एंजाइम नहीं है, काफी सारे एंजाइम्स हैं और उसको कहेंगे अल्फा केडीसी या अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करेगा, इसका अगर मैं वैसे काफी लंबा रिएक्शन है लेकिन मेन क्या बात होती है, ये जो NAD+ है, क्या वाला, कौन से वाला, ये वाला, ये NAD+ इस H को, ये जो कोएंजाइम A के साथ है, इसको अपने साथ मिला लेता है, ठीक है, और बना देता है NADH, ठीक है। और ये जो कोएंजाइम A है ये इस CO2 को रिलीज करवा देता है, इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स है, पूरे एंजाइम्स पड़े, वो डीकार्बोक्सिलेज जो है वो इस CO2 को रिलीज करवा देगा, इस CO2 को रिलीज करवा देगा और इस कार्बन के साथ ये जो बचा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A था, ये हमारे पास जो कोएंजाइम A है वो हमारे पास इसके साथ ऐड हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर S और कोएंजाइम A और प्रोडक्ट में क्या क्या बना, CO2 और NADH। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हम देखें तो कितने हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, लेकिन कोएंजाइम A की वजह से इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर इसमें हम सिंपल इन विट्रो कंडीशंस में इसमें पानी डाल दें तो ये सिंपल सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो है ना वो कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो हमारी ज़ाया चली जाती है। तो इसके साथ क्या होता है, इसकी हमने एनर्जी ऑब्टेन करनी होती है, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन कैसे करते हैं, यही सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं फास्फेट, क्या ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करेंगे और जो एंजाइम यूज होगा उसको नाम देंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज, ठीक है। ये वाला एंजाइम जो है ये यहाँ पर यूज होगा और फास्फेट की होगी एडिशन, फास्फेट की क्या होगी, एडिशन। फास्फेट कहाँ ऐड होगा, इस वाले कोएंजाइम A को रिप्लेस करके वहां पर ऐड होगा फास्फेट। अब जब फास्फेट ऐड होगा तो ये कोएंजाइम A तो निकल जाएगा, ठीक है, कोएंजाइम A यहाँ से निकल गया और फास्फेट के एडिशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर आके अटैच हुआ फास्फेट का ग्रुप, क्या अटैच हुआ, फास्फेट का ग्रुप। अब इसको जो नाम देंगे वो हम देंगे, ये एक इंटरमीडिएट है, यहाँ पर इसको जो नाम दिया जाएगा वो होगा सक्सिनाइल फास्फेट, क्या होगा, सक्सिनाइल फास्फेट। अब ये जो सक्सिनाइल फास्फेट है ये हमारे पास इस फास्फेट को डोनेट कर देगा, इस वाले फास्फेट को डोनेट कर देगा, यहाँ पर होती है GDP, ठीक है। उस GDP को ये अपना ये वाला फास्फेट डोनेट कर देगा तो वो बन जाएगा GTP, वो क्या बन जाएगा, GTP। अब क्योंकि यहाँ पर फिर उसकी एनर्जी की प्रोडक्शन हुई ड्यू टू सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होगी और जो पीछे स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CH2 उसके बाद C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ से फास्फेट रिलीज हुआ था तो जो पीछे सिर्फ O नेगेटिव बच गया था। अब अगर इस O नेगेटिव की बात करें तो C डबल बॉन्ड O एक ये है और एक ये है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और इसको हम नाम देंगे सक्सिनेट का, किसका, सक्सिनेट। तो यहाँ से हम सक्सिनाइल कोएंजाइम A से हमारे पास क्या बना, सक्सिनेट। और याद रखना ये जो GTP है ये GTP अपना ये जो फास्फेट इसने यहाँ से निकाला था इसको रेडिली ATP में कन्वर्ट कर देगा, ADP को अपना फास्फेट देके ATP में इसको कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फोकाइनेज, ठीक है। डाइफास्फोकाइनेज जो है वो क्या कर देगा, GTP से फास्फेट लेके उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। और कभी कभी बाज़ दफा ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें GTP की जगह हम IDP यूज करते हैं, इनोसिन डाइफास्फेट, ठीक है,
एडीपी जो है वो इसको आईटीपी में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो आईटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोसिन डाइफॉस्फेट भी इसमें यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन के आखिर में, वो क्या बना, सक्सीनेट। वो क्या बना, सक्सीनेट। मैं यहाँ से इसको सक्सीनेट की फॉर्म में आगे प्रोसीड करता हूँ। सक्सीनेट में हमारे पास क्या चेंजिंग आई कि यहाँ पर लग गया O नेगेटिव, यहाँ पर लग गया O नेगेटिव, बन गया हमारे पास सक्सीनेट। अब देखते हैं कि सक्सीनेट के साथ आगे क्या होगा। सक्सीनेट की होगी आगे डिहाइड्रोजनेशन होगी और हमारे पास ऑक्सीडेशन यहाँ पर कैसे होगी, Na+ हम ऐड करेंगे। Na+ यहाँ पर नहीं, क्रेब्स साइकिल की ये वाहिद वो स्टेप है जहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए हम Na+ की जगह Fad+ यूज करते हैं, और ये जो Fad+ है ये एक एंजाइम के साथ अटैच करता है। तो ये हमारे पास सक्सीनेट था, ये क्या था, सक्सीनेट। इस सक्सीनेट में हमने एक एंजाइम क्या ऐड किया जिसका जो हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप था वो Fad+ था। वो क्या था, Fad+। अब ये क्या करेगा, ये जो Fad+ है सक्सीनेट को क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम तो वही पड़ेगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज का अगर नाम आ गया तो इसका मतलब कहीं से तो हाइड्रोजन निकलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, HH और HH आपकी आसानी के लिए। तो अब होगा क्या, ये जो Fad+ है, ये वाला Fad+, ये हमारे पास इस वाले H को याद रखना, सिस वाले नहीं, जो ट्रांस वाले हैं, इस वाले H को और इस वाले H को निकाल देगा। जब इन दोनों वाले H को निकाल देगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, FADH2। वो क्या बनेगा, FADH2। पीछे जो स्ट्रक्चर बच जाएगा वो कौन सा बच जाएगा, C++O नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला हाइड्रोजन बच जाएगा और इसके साथ इस तरफ फिर C++O नेगेटिव, और ये वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अब हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं फ्यूमेरेट। इसे क्या बोलते हैं, फ्यूमेरेट। और जो फ्यूमेरेट है वो असल में कौन सी है, ट्रांसफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर इसकी सिस फॉर्म बनती तो सिस फॉर्म फ्यूमेरेट ना बनता, बल्कि जो अगर सिस इसकी होती ना डिहाइड्रोजनेशन, तो उससे हमारे पास बनता मेलिएट। अगर सिस फॉर्म की हम बात करते हैं तो सिस फॉर्म जो है इसकी क्या है, मेलिएट। ठीक है, तो वो फ्यूमेरेट नहीं बनता बल्कि बनता क्या, मेलिएट। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया फ्यूमेरेट। अब इस फ्यूमेरेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मेलेट में। किसमें, मेलेट में। अब मैं उसको वहां से उल्टा चलाने लगा, वहां पर हमारे पास बन गया था फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट की हम करेंगे हाइड्रेशन, सिंपल क्या करेंगे, हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस होगी तो हाइड्रोलाइसिस की वजह से हम यहाँ पर ऐड करेंगे HOH। ठीक है, HOH ऐड करेंगे और जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फ्यूमेरेट हाइड्राटेज। फ्यूमेरेट हाइड्राटेज। फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज एंजाइम यूज करेंगे तो HOH हमेशा डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। डबल बॉन्ड पे ये अटैक करेगा और OH इधर अटैच हो जाएगा और H इधर अटैच हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, C, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास C++O नेगेटिव, और इस तरफ बन जाएगा OH, फिर H, और उसके बाद C, एक तरफ H, एक तरफ ये वाला H अटैच हो जाएगा, और नीचे हमारे पास होगा C++O नेगेटिव। तो अब ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला जो है इसके लेफ्ट साइड को OH है, तो इसको नाम हम देंगे L-मेलेट का, या सिंपल मेलेट भी कह दो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर, जब फ्यूमेरेट की हम करेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस होगी, और उस हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, मेलेट। अब ये जो मेलेट बन गया, अब इसके देखिए इसके साथ क्या होता है। मेलेट की होगी दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीडेशन करने के लिए हमेशा NAD+ डालते हैं। क्या डालते हैं, NAD+। NAD+ डालेंगे और एंजाइम जो यूज होगा वो होगा मेलेट। वो क्या होगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, ये NAD+ क्या करेगा कि इस H को
और इस H को निकाल देगा। जब इन दोनों H को निकालेगा तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ NaDH प्लस H पॉजिटिव, तो पीछे स्ट्रक्चर क्या बचेगा, पीछे वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचेगा वो होगा C। ये दोनों H निकल गए तो ये बना देगा डबल बॉन्ड, इसी C के साथ अटैच था C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे नीचे CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखा तो क्या ये वही स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने स्टार्ट में लिया था, वही स्ट्रक्चर है। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट है, ये क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट है। हम कामयाब हो चुके हैं क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वो रीजनरेट हो चुका है। ये रीजनरेशन किसकी फॉर्म में हुई, ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साइकिल की फॉर्म में लिखते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं जहां से समझ नहीं आया इसको दोबारा से देख लो, जो स्ट्रक्चर बना है इसको थोड़ा सा हम साइकिल की फॉर्म में लिखते हैं। साइकिल की फॉर्म में लिखने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमने की थी पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। क्या की थी, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद जो मिला हमारे पास वो था एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर हुआ था क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल कैसे चला था, एसिटाइल एंजाइम कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिला था। किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिला, H2O इसने ऐड किया, H2O ऐड किया और ये कन्वर्ट हो गया था ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, सिट्रेट क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड। और जो एंजाइम यूज हुआ था वो कौन सा यूज हुआ था, ऑक्सैलो एसीटेट को हमने जब सिट्रेट में कन्वर्ट करवाया था तो जो एंजाइम यूज हुआ था वो था सिट्रेट सिंथेस। एंजाइम आगे हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल एक साइकिल बना रहे हैं क्योंकि हम स्टेप्स वाइज में एंजाइम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, जो सिट्रेट है, सिट्रेट की हुई हमारे पास आइसोमराइजेशन और वो कन्वर्ट हुआ किसमें, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड। इसी आइसोसिट्रेट की आगे हो गई ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गई, तो वहां से एक CO2 रिलीज हो गया था। क्या हुआ था, CO2 रिलीज हो गया था और एक NaDH भी रिलीज हो गया था। अब इस NaDH के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना था वो क्या था, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड था। फिर इसकी दोबारा से डीकार्बोक्सिलेशन हुई और साथ में ऑक्सीडेशन भी हुई, तो फिर इससे CO2 निकला। ठीक है, NaDH बना और कोएंजाइम ए हमने ऐड करवाया था इधर, तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कितना था, 5 कार्बन कंपाउंड था, 4 सॉरी कितने वाला था, 4। अब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो एनर्जी जो है इसका कोएंजाइम ए हमने रिलीज करवाया, जो एनर्जी थी उसको हमने जीटीपी में कन्वर्ट किया था और वो जो जीटीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गई थी। यहाँ से यहाँ पे कौन सी फास्फोरिलेशन हुई थी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सक्सिनाइल ये कन्वर्ट हो गया था सक्सिनेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुआ, सक्सिनेट में। 4 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनेट की आगे हुई डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज किया और यहाँ पर जो चीज रिलीज हुई थी वो थी FADH2। FADH2 रिलीज हो गया, तो FADH2 बना था, डिहाइड्रोजनेशन हुई और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना था वो क्या था, फ्यूमरेट। क्या था, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट की हुई हाइड्रेशन और ये बन गया मेलेट। क्या बना, मेलेट। और इसकी क्या हुई थी, हाइड्रेशन, H2 हमने ऐड किया था। मेलेट से बना था ऑक्सैलो एसीटेट और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या आया था, NaDH। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल जो है ये मुकम्मल हुआ और इस साइकिल को हमने नाम क्या दिया था, क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल को नाम क्या दिया था हमने, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब यहाँ से अगर थ्योरेटिकली देखा जाए ना तो ये ऑक्सैलो एसीटेट कहीं पर भी खत्म नहीं होता। जैसे ही ये स्टार्ट होता है, अगर इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते रहे तो ये एक ऑक्सैलो एसीटेट के एक मोल भी अगर हम लें तो वो इनडेफिनेट नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास देखो क्रेब्स साइकिल से क्या क्या चीजें मिली। एक तो हमारे पास एक CO2 ये रिलीज हुआ, एक CO2 ये रिलीज हुआ, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 CO2 हमारे रिलीज हुए।
اس کے بعد ایک اسٹیپ ہے جب آئسوسیٹریٹ الفا کیٹوگلوٹرائٹ میں کنورٹ ہو رہا تھا وہاں پہ ایک NADH بنا، پھر ایک NADH اسٹیپ میں بنا جب الفا کیٹو سکسینائل میں کنورٹ ہو رہا تھا، اور ایک NADH جب میلیٹ آکزیلواسیٹیٹ میں کنورٹ ہو رہا تھا۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے NADH بنے؟ تین ہمارے پاس بنے NADH۔ اور اس جگہ پر جب سکسینیٹ فیومیریٹ میں کنورٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک ہمارے پاس FADH2 بنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوئی تھی جب ایک ایسیٹائل کوانزائم A ہوتا ہے۔ اب دیکھو جب گلوکوز کا مالیکیول ٹوٹتا ہے تو اس سے دو پائرویٹ بنیں گے، دو پائرویٹ سے دو ایسیٹائل کوانزائم A، دو ایسیٹائل کوانزائم A سے ان کا ڈبل آئے گا، مطلب ایک مکمل گلوکوز سے 4 کاربن ڈائی آکسائڈ، 6 NADH اور 2 FADH2 جو ہیں وہ کس میں بنیں گے؟ کریبس سائیکل میں بنیں گے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کریبس سائیکل ہو جاتا ہے کمپلیٹ، ہمارے پاس یہ جو انرجی رچ کمپاؤنڈز ہیں یہ آگے جا کے انٹر ہوں گے کس میں؟ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں۔ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں انٹر ہونے کے بعد ان سے بنے گی آکسیڈیٹیو لیول پہ ATP، تو وہ اگلے لیکچر میں ہے۔ باقی اس میں کیا ہے، اس میں بس یہاں پہ ہمارے پاس جو کریبس سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے آگے جو ہے پھر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اگر صرف ایک ہی سٹیپ ہے جہاں پر کریبس سائیکل میں ATP بنتی ہے سبسٹریٹ لیول پہ، اور وہ کون سا سٹیپ ہے؟ جب سکسینائل کوانزائم A کنورٹ ہوتا ہے کس میں؟ سکسینیٹ میں، تو وہاں سے GTP جو ہے GTP میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور GTP جو ہے وہ دوبارہ سے ATP میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو دس واز آل اباؤٹ دا کریبس سائیکل۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس میں یہاں پر تو وہ پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دیجیے گا، اس کو کمنٹ میں مینشن کر دیجیے گا، اور تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔